السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ فارمولا ای ریس کیس میں ایک اہم پیش رفت فارمولا ای ریس کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلے اس کیس میں جامع جانچ کرنے والی ACB نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے، جو ویجیلنس کمیشن کے پاس پہنچا دی گئی ہے اور 2 دنوں کے اندر فائل پر حتمی فیصلہ لیا جائے گا اور ویجیلنس کمیشن اس رپورٹ کو حکومت کو پیش کرے گا۔ منظوری ملتے ہی ملزمین کے خلاف چارج شیٹ دائر کرنے کے لیے رپورٹ دوبارہ ACB کو واپس بھیج دی جائے گی۔ فارمولا ای ریس کیس میں اصل ملزم کے طور پر تلنگانہ کے سابق وزیر و ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ، ملزم نمبر 2 کے طور پر سینئر IAS آفیسر اروند کمار اور دیگر شامل ہیں۔ آبپاشی اور سول سپلائز کے وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے کرشنا آبی تنازعے میں تلنگانہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کانگریس حکومت کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست سے تعلق رکھنے والے پانی کی ایک بوند کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبپاشی پینے اور صنعتی ضروریات کے لیے کرشنا کے پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر نے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل CS ودیاناتھن اور قانونی اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ ضلع سودھا میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ یہ بات چیت 23 سے 25 ستمبر تک نئی دہلی میں ہونے والی اہم کرشنا واٹر ڈسپیوٹ ٹریبیونل کی سماعتوں کی تیاری کے لیے کی گئی تھی۔ آئندہ سیشن کو ممکنہ طور پر آخری دور کی سماعت قرار دیتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو اپنا کیس واضح اور حل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے ماہرین کو بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی اس معاملے پر مشاورت میں شامل ہونے کے لیے اپنے شیڈول میں تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیف منسٹر کو ٹریبیونل کے سامنے رکھے گئے مسائل، اب تک کی پیش رفت اور تلنگانہ کے کرشنا کے پانی کے جائزہ حصے کو محفوظ بنانے کے لیے مزید کن اقدامات کی ضرورت کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ وزیر نے تصدیق کی کہ وہ اس ماہ کے آخر میں ٹریبیونل کی سماعتوں میں ذاتی طور پر شرکت کریں گے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں اندرما مکانات کی تعمیر GST میں کمی سے ہر استفادہ کنندہ کو 7,000 روپے کی بچت۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیر ایک ہی پیمانے پر کی جا رہی۔ حکام کے مطابق ہر مکان کی تعمیر کے لیے اوسطاً 180 تھیلے سیمنٹ اور 1500 کلو اسٹیل درکار ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں سیمنٹ کا فی تھیلا قیمت تقریباً 350 روپے اور اسٹیل کی فی ٹن قیمت 5,500 سے 5,700 روپے کے درمیان ہے۔ یہ سامان اس ماہ 21 تاریخ تک 28% GST کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ اس کے بعد GST میں 10% کمی کی جائے گی۔ کمی کے بعد فی بوری سیمنٹ پر 35 روپے اور فی ٹن اسٹیل پر 550 روپے تک بچت ہوگی۔ اسی طرح ایک گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک مستفید افراد کو تقریباً 7,000 روپے تک کی بچت ہوگی۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا ہے کہ سرکاری دستاویزات کی جعل سازی کرتے ہوئے عدالت کو گمراہ کرنا سنگین جرم ہے۔ انہوں نے ایسے جرائم کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کے انتباہ دیے۔ عادل آباد پولیس نے ایک بڑے جعل سازی ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جبکہ مزید 9 ملزمین مفرور ہیں۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے عادل آباد ضلع مستقر کے AR پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے پنچایت سیکریٹری کے دستخطوں کو جعل سازی کے ذریعے تیار کرتے ہوئے نقلی ضمانت نامے بنائے اور انہیں عدالت میں اصل دستاویزات ظاہر کرتے ہوئے پیش کیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں ملیو ایڈوسس کے مشتبہ معاملات آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں ملیو ایڈوسس کے مشتبہ معاملات کا ڈاکٹر کو شبہ ہے۔ ان معاملات کے سامنے آنے کے بعد عوام میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ملیو ایڈوسس ایک سنگین بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں اور جانوروں میں نمی والی مٹی یا کھیتوں کے پانی سے رابطے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری، پھیپھڑوں کا انفیکشن، جلد پر زخم یا فلوٹس، جسم کے مختلف حصوں میں انفیکشن، شدید معاملات میں خون میں انفیکشن شامل ہیں۔ کمزور مدافعتی نظام والے افراد مثلاً ذیابیطس، کینسر یا HIV والے افراد، کسان، کھیت مزدور یا پانی کے ساتھ کام کرنے والے افراد اس سے جلد متاثر ہوتے ہیں۔
ममता बनर्जी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अबूरी हुकूमत की क़ियादत संभालने पर मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला और तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने नेपाल की अबूरी हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म बनने पर सुशीला कार्की को मुबारकबाद दी। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में कहा कि सुशीला कार्की को नेपाल की अबूरी हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। मगरबी बंगाल की सरहदें नेपाल से मिलती हैं और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं। हम हमसाया ममालिक के तौर पर दोस्ती और ताउन के गहरे रिश्तों को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाह हैं। बिहार असेंबली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो 16 अजला का दौरा करेंगे जहां हालिया वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा सकी थी। ये यात्रा कांग्रेस के तहत राहुल गांधी की क़ियादत में निकाली गई थी, जिसमें तेजस्वी ने भी सरगर्मी से शिरकत की थी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत में नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल बिगड़ चुकी है। पटना और खगड़िया में 24 घंटों के अंदर 2 कत्ल होने का हवाला देते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार की सड़कें खून से सुर्ख हो गई हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तेजस्वी यादव के मुताबिक खगड़िया में उनके एक एमएलए के ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि उससे पहले पटना में आरजेडी लीडर को भी निशाना बनाया गया। नज़्म नस्क़ के साथ साथ तेजस्वी ने बदउनवानी पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में वज़ीर-ए-आला डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। दरअसल मंदसौर में हॉट एयर बैलून में उड़ान भरने से ठीक पहले आग लग गई। हालांकि मौके पर मौजूद एहलकारों ने फौरन आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर फॉरेस्ट स्ट्रीट पहुंचे और यहां उन्होंने बोटिंग का लुत्फ उठाया। इसके बाद वो सुबह सवेरे मंदसौर के रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता के साथ हॉट एयर बैलून के तफरीही सफर पर निकलने वाले थे, लेकिन हवा की रफ्तार मुनासिब नहीं होने से बैलून उड़ नहीं सका। बताया जा रहा है कि बैलून में हवा भरी जा रही थी, तभी इसमें आग लग गई। हादसे के वक्त वज़ीर-ए-आला मोहन यादव बैलून के ठीक नीचे खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रॉली को संभाल रखा था। एहलकारों की मुस्तैदी की वजह से आग को फौरन बुझा दिया गया और वज़ीर-ए-आला पूरी तरह से महफूज हैं। इस हादसे के बाद वज़ीर-ए-आला का हॉट एयर बैलून का सफर मनसूख कर दिया गया। हॉट एयर बैलून के माहिर ने बताया कि रफ्तार ना के बराबर रहती है और हॉट एयर बैलून में हवा की रफ्तार 0 होनी चाहिए, लेकिन जब वज़ीर-ए-आला सवार हुए तब रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा तक थी। इस वजह से बैलून ऊपर नहीं जा सका। जब इसमें हवा भरी जा रही थी तो वो नीचे झुक गया, इससे निचले हिस्से में आग लग गई। इसके ठीक नीचे वज़ीर-ए-आला खड़े थे। इसकी वजह से सीएम सिक्योरिटी भी अलर्ट हुई और ट्रॉली को संभालने लगा और दूसरी तरफ माहिरीन और एहलकारों ने आग को बुझाया। इस दौरान वज़ीर-ए-आला मोहन यादव ने कहा कि गांधी सागर महासागर के बराबर है, यहाँ कुदरती तौर से भी वाइल्ड लाइफ की दौलत है। मैं रात में यहीं रुका था और वाटर एक्टिविटी में शामिल हुआ और सयाहों के ये स्वर्ग की तरह। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क क्यों जाना जब यहीं पर ऐसी विरासत और स्पॉट दस्तयाब है। जी यहाँ अद्भुत छठा बिखेरते हैं, जिसकी आप निगाहें भर भर कर आनंद ले सकते हैं। आइए सारे स्थानों को जागृत करें, हमारा अपना समय भी अपनी प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कुछ पल जरूर निकालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल मुसलसल संगीन है। पंजाब और सिंध में सैलाब की वजह से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। 21,05,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जून से अब तक बारिश और सैलाब के सबब 900 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट में अब तक 932 हलाकतों, 1060 अफराद के जख्मी होने और 8,238 घरों के तबाह होने की इत्तला दी गई। खराब हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने रवा हफ्ते 41 करोड़ 5 लाख रुपए की मदद भी दी। इस दरमियान पाकिस्तान ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 दिनों का मंसूबा बनाने का हुक्म अफसरान को दिया। पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही, इसके मुताबिक तनहा पंजाब इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया। इसी तरह सिंध इलाके में 1.5 लाख लोगों को निकाला गया। आने वाले दिनों में ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। जून के आखिर से अब तक पाकिस्तान भर में बारिश और इससे मुंसलिक अलग अलग वाक़यात में 900 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है।
हिंदुस्तान ने नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार की क़यादत में तश्कील पाई नई उबूरी हुकूमत का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे खित्ते में अमन और सियासी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सुशीला कार की नेपाल की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ दिलाया गया। वज़ारत ख़ारिजा MEA ने अपने बयान में कहा है कि हम सुशीला कार की क़यादत में नेपाल में उबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये कदम नेपाल में अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाएगा। हिंदुस्तान एक करीबी पड़ोसी जमहूरी मुल्क और देरीना और तरक्याती शिराकत दार के तौर पर नेपाल के अवाम की खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेगा। सुशीला कार्की ने 73 बरस की उम्र में ये ओहदा ऐसे वक्त संभाला जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली को सोशल मीडिया पर मुतनाज़ पाबंदी और इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के बाद मुस्तफ़ी होना पड़ा। यह एहतजाज कई दिन तक जारी रहा और इस दौरान तशद्दुद भी फूट पड़ा। बिला आखिर अवामी दबाव के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा और सदर रामचंद्र पौडेल ने कारी के काठमांडू के सदारती महल में हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस, आला सरकारी अफसरान, सिक्योरिटी हुकाम और गैर मुल्की सिफारतकार भी मौजूद थे। चीन अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक सुबह 10:37 पर बीजिंग के वक्त मुताबिक रूस के कमचाटका जजीरा नुमा के मशरक़ी साहिल के करीब समंदर में 7.3 शिद्दत का जल्जला आया। जल्जले का मरकज़ 53.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद और 160.45 दर्जे मशरक़ी तूल बलद पर रिकॉर्ड किया गया। जल्जला ज़मीन की सतह से 20 किलोमीटर की गहराई में आया। गजा पर इसराइल के वहशाना हमले मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में 50 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की इत्तला है। इसराइली फ़ौज गजा शहर पर अपने हमले मज़ीद तेज़ कर चुके हैं। वहीं गजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गजा सिटी में रहने वाले लाखों लोगों ने घर छोड़ा कर इसराइल फ़ौज के बताए महफूज मुकाम पर जाने से इनकार कर दिया। हमास के गढ़ माने जाने वाले इस शहर पर इसराइली फ़ौज मुसलसल गोलीबारी और बमबारी कर रही, साथ ही इस इलाके में खुराक की सप्लाई भी रुकी हुई है, जिससे शहरियों को ज़बरदस्त फाका कुशी का सामना है। इसराइली हुकूमत ने गजा पर कब्जा करने और हमलेबाजी जारी रखने का ऐलान किया। फ़ौज को हमास के असर वाले इस शहर में इसराइली यरगमालियों के कैद होने अंदेशा है। गजा सिटी वो शहर जिस पर इसराइली फ़ौज 23 महीनों के हमले के बाद भी कब्जा नहीं कर पाई। इसके मज़ाफ़ाती इलाकों को इसराइली फ़ौज ने खाली करा लिया है, लेकिन कसीर आबादी वाले शहर में ज़मीनी कार्रवाई तेज़ नहीं हो पा रही। वहाँ के लोगों ने शहर को खाली करने से इनकार कर दिया है और इसराइली जुल्म के खिलाफ अभी भी डटे हुए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।